ذرا دیکھیے یہ کہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ جو باب ہیں نا، جو یہ والے باب ہیں، ان کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ اب کیسے ہے؟ یہ ہے نا تفاعل، یہ فعل ماضی ہے، یہ تفاعل فعل ماضی ہے، ویسے مصدر ہے تفاعل، تو میں نے مصدر لکھے ہیں تفاعل، اس کا ماضی کیا ہے؟ تفاعل، تے ہے، مضارع میں بھی ہے، امر میں بھی ہے، سب جگہ، سب تمام فعل میں تے رہے گا۔ تو یہ ایک تو یہ آپ کو یعنی اس سے اس تے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ وہ تے مؤنث والا ہے، عطین والا، یا یہ تے جو ہے مخاطب والا ہے۔ تو تفاعل، تقبل، پھر مضارع جب ہوگا یتقبل، وہ قبول کرتا ہے، تے آتا ہے۔ یہ افعال ہے نا، تو اس کے شروع میں عام طور پر یہ الف آتا ہے، مضارع کے اندر گر جاتا ہے۔ افتعال کے اندر شروع میں کیا آتا ہے؟ اس کا جو ایکسٹرا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم ایکسٹرا کریں، ایکسٹرا اصل میں لفظ تو تین ہوتے ہیں صرف نا، صرف تین ہوتے ہیں، اصل لفظ تین ہیں، ثلاثی ہے نا تین، تو باقی جو بھی ہوگا وہ ایکسٹرا ہوگا۔ اس میں یہ ایکسٹرا ہے، اور مصدر کے اندر یہ بھی ایکسٹرا ہوگا، تو کتنے بچ گئے یہ؟ ہاں تین۔ تو اگر ہم اس کی مثال دیں اکرام، تو کتنے کون کون سے لفظ اصلی ہوں گے؟ اکرام، یہ الف تو زبر ویسے ہم ایسے لکھ دیتے اکرام، تو اس میں اس کا مادہ کیا ہے؟ کاف رے میم، باقی یہ ایکسٹرا ہے، الف، یہ بھی الف ایکسٹرا ہے۔ افتعال کے اندر ایکسٹرا کیا ہے؟ فے، دیکھیں فے اور عین اور لام یہ اصلی ہیں، باقی سارے ایکسٹرا ہوتے ہیں، بس یوں سمجھ لیں۔ اصلی جو ہوتے ہیں نا وہ فے عین لام ہے، ہاں پھر الف، تو یہ تے بھی ایکسٹرا ہو گئی اور الف بھی ایکسٹرا ہوگا۔ یہ مصدر میں یہ الف بھی ایکسٹرا ہوگا، ماضی میں ایسا نہیں ہوگا۔ افتعال، تو افتعال ماضی کو دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ایکسٹرا الف اور تے، یعنی جو یہ فے کلمے کے بعد جو تے آتی ہے نا، یہ اسی باب کی آتی ہے، افتعال کی، فے کلمے کے بعد۔ مفاعلہ میں کون کون سی چیز ایکسٹرا ہے؟ عین لام۔ اگر میں اس کو کہوں مقابلہ، اب ذرا بتائیے اس میں ایکسٹرا کیا ہے اور لفظ کون سا ہے؟ قابلہ، قابلہ، بالکل، قاف بے لام، باقی ایکسٹرا ہے۔ اور اس کا ماضی کیا تھا؟ قابلہ، یقابلو، یہی پڑھا تھا نا، ضارب یضارب۔ تفعیل کا ماضی ہے فعل، تفعیل، تو اس کا مصدر ہے تفعیل کا تصریف، یہ ہے تصریف، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ صاد ر فی۔ ان میں تفعیل ڈھونڈے کہاں ہیں؟ صرفا، یصرفو، اور امر کیا ہوگا؟ صرف، یصرفو ہے نا، یہ کو ہٹائیں تو زبر رہے گی، ان کے اندر باب تفعیل ڈھونڈیں۔ اچھا زیر زبر نہیں ہے نا، تو یہ آپ کے لیے پریشانی ہے میرے خیال میں نا، یہ اوفو میں لازمی طور پر جو ہے نا وہ لگا دیتا ہوں، یہ تو اسم ہے، احلت، اچھا یحکمو، یرید، یریدو یعنی آمنو، ولا تحلوا، یبتغون، اور صدو، ٹھیک ہے نا، صدو کم، یجرمن، یہ نون ہٹا دیں گے، نون کو میں ہٹا دیتا ہوں، یجری، یجریمو، اور تعتدو، تعاونو،
یہ بھی ویسے ہو گیا. واتقو حرمت، حرمت یہ زیر ہے، حرمت منخنقہ، منخنقہ موقوذہ متردیہ، متردی یہ زیر ہے. اکلا زکی ذبیحہ تستقسمو متجانف مکلبین. اب یہ ہے امسکنا. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ضروری نہیں واحد کا ہو، تثنیہ جمع اس میں تھوڑی چینجنگ ہو جاتی ہے نا، واحد تثنیہ جمع میں بھی چینجنگ ہو جاتی ہے. باب تفیل ہے. ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ شہباز. ہاں بالکل ایسے ہے. حرمت یہ مجہول ہے. حرمت جو ہے نا، ایک منٹ حسین، حرمت مجہول ہے. ہاں یہ ہے حرمت. حرمت یعنی باب تفعیل کی خاص جو علامت ہے وہ ہے تشدید، شد خاص ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ رہے گی. لیکن شد کے بعد بھی اس کے لفظ جو ہے نا تین رہیں گے. یعنی دیکھیں یہ سدو ہے نا، سدا، لیکن یہ تو شد کے بعد دو بچ گئے نا، سدو. یہ اس کا واو کو ہٹا دیں، سدا ہے اس کا ماضی نا، تو یہ دو ہیں. وہ شد کے بعد بھی تین ہیں. سرافا یہی پڑھا تھا نا باب تفعیل. سرافا تین لفظ ہوں گے، شد بھی ہوگی، آ جائیں تین لفظ. تے یہ تے کو چھوڑ کر تے تو مؤنث والی ہے نا، دوری بت والی ہے نا، یہ مجہول ہو گیا. یہ حرمت مجہول ہو گیا. اچھا عائشہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ ذرا ان کو سمجھا دیں، ہو سکتا ہے آپ کا طریقہ کوئی اور ہو. ہاں مجہول، مجہول مجہول صرفا، بلکہ آپ نے یاد تو کیا ہوا ہے نا، صرفا یصرف تصریفا فہو مصرف و صرفا. مجہول تو یاد کیا ہوا ہے آپ نے، تو پھر مشکل کیا ہو گئی؟ وہ تو یاد کیا ہوا آپ نے مجہول. صرفا یصرف. جی حسین کچھ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ موقوذہ تو ہے یا تن ہے؟ خیر اصل میں زیر زبر کا تو مجھے اچھا دال اور موقوذہ، آپ دال کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں دال ہے شاید، صحیح کہہ رہے ہیں. المو چلے. اور مجھے یہ بتائیے کہ ذال ہے، ہاں ذال ہے ذال. اچھا اور مجھے یہ بتائیے کہ یہاں باب افتعال تلاش کیجئے گا. عائشہ ابھی آپ نہیں بتائیے گا. افتعال، ان کے اندر باب افتعال تلاش کیجئے. افتعال کا کیا ہوگا کہ اس کے اندر تے ہوگی لازمی طور پر، اور تے بھی فے کلمہ کے بعد ہوگی. ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر، جہاں پر بھی ہوگا. دیکھ رہے ہیں نا، تے کب ہوگی؟ فی کلمہ کے بعد، اور کہیں نہیں ہوتی، اسی باب کی ہوتی ہے، اسی باب کی ہوتی ہے اور کہیں نہیں. فے کلمہ کے بعد تے ہوگی. یعنی ابھی اور تے ہے بھی نہیں یہاں پر، ہم اس تے کو ہٹائیں گے تو تب بھی لفظ پورے ہوں گے ہمارے، کیونکہ ایکسٹرا ہے نا یہ.
इत्तका, चूंकि वो असल में तालील हुई ना उसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा समझना मुश्किल है, उसको छोड़ देते हैं अभी। को तालील वाला स्टूडेंट्स तो नहीं समझेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें बताना पड़ेगा कुछ और। उसके अलावा कैसे पता चला आपको सना? ये वाला, अच्छा, जो माजी होगा तो क्या होगा? ये हटा देंगे, ये वाला, ये, अच्छा, तो फिर और ये की जगह क्या लगा देंगे? अलिफ लगा देंगे, ऐसा है ना, अलिफ लगा देंगे। यजतानीबू, इजतनाबा, इब्तगा, ये या है असल में, ठीक है, ऐसा ही है, यब्तगूना है, यानी ये बे है ना, ये बे के बाद ते आया है ना, ये तो हटा देंगे, ठीक कह रही ना ये सना, ये देखें, ये को हटाएंगे ना, तो ये अब फा कलीमा हुआ ना, तो ये ते आ गई फा कलीमा के बाद, तो ये वही बाब होगा फिर। ऐसा ही पहचाना ना आपने, या कोई और किसी और वजह से पहचाना? कैसे पहचाना? हाँ, या हटा देंगे, मुजारे की है ना, हाँ, वो ऐन कलीमा जो है वो है ये फा, और ऐन के बीच में ता है, ता है बीच में, वो यब्तगूना, वो हज़फ हो गया, वो हज़फ हो गया। ते तो आई है ना, सना को कैसे पता चला? मैंने तो नहीं बताया ना उनको। या कलीमा हज़फ हुआ है, यानी एक या और भी है, शायद रमशा को ये परेशानी हो रही थी कि वो 3 कलीमा पूरे करने के चक्कर में थी और वो हुए नहीं, तो एक या इसमें हज़फ हुई है। असल में ये लफ्ज़ है ताली इब्तगा, इसका जो माजी है ना ये है इब्तगा, इब्तगा, ये जो या है ना ये फिर हज़फ भी हो जाती है, इब्तगाऊ, इसका अमर है, इसका इब्तगाऊ, अब देखें या फिर हज़फ हो, और जमा में मतलब या हज़फ हुई, लेकिन फिर भी पहचानना है आपको, उस ते से पहचाना, उस ते से ही पहचाना है। तो जमा है ये, और वाव ज़मीर होगी ये, अच्छा, और भी है कोई लफ्ज़? ये एक तो ये वत्तकू भी है, असल में एक वाव इसमें हज़फ हुई है ना, इवताकू था, इवताकू है, तो आपको थोड़ी उसमें मुश्किल होगी। मैं आपके लिए आसान लफ्ज़ कोई तलाश करता हूँ। कोई और लफ्ज़ है, ज़रा देखिएगा, है और भी है, नहीं, तातदू है, और वहाँ पर भी यही सेम बात हो गई, लेकिन आपको कैसे पता चला नवाज? बिल्कुल, ते अलामत मुजारा है, यानी तुम, ऐन के बाद ते आ रही है जी। ते है फिल मुजारे की अलामत, ये कि तुम ज्यादती करो, उद्वान, ज्यादती, अदावत, इसी से है अदावत। तो अब ते जो है ना ये है फिल मुजारे की कि तुम करते हो, तो ते को हटाएं, ऐन के बाद ते आ गई, तो उसी से पहचान लिया इन्होंने, वरना इसमें भी बिल्कुल सेम है, इब्तगा और एतदा बिल्कुल सेम है, इसके अंदर भी एक या महजूफ है। सही, हाँ, ये शुरू में आना है, शायद पिछली दफ़ा शायद मैं आपको बताया था कि नहीं बताया था, ये बात बताई थी कि मुजारे के शुरू में, बल्कि जब मैं बड़ा आपको बता रहा था वो लम लन, तो वहाँ पर तो बताया होगा, नहीं बताया था? अच्छा, चलें कोई बात नहीं। ये अन जो आता है ना, ये फ़िल मुजारे के शुरू में अगर आखिर में वाव ना हो ना, आम लफ्ज़ हो, तो ज़बर देता है, और अगर आखिर में जमा हो तो वो नून गिर जाता है। यानी ये है ना, देखें आप, ये है यदरिबू, यदरिबू,
यदरिबु, और अन आएगा तो ये होगा अन यदरिबा। तो कुरान में है ना अन यदरिबा। अच्छा, अब ये है वाहिद का, और अगर इसको हम यदरिबूना होता तो नून गिर जाता। मैं इसको जमा लिख दूं, यदरिबूना, ये अन आएगा तो क्या होगा फिर, ये नून नहीं होगा, ये गिर जाएगा अन की वजह से। यानी ये भी परेशानी हो रही थी कि ये नून कहाँ गया ये। अच्छा, सही। और भी है क्या कोई बाब इफ्तियाल का कोई लफ्ज़? नहीं है। अच्छा, अब बाब इफ़ाल का लफ्ज़ तलाश कीजिए, इफ़ाल का। जी आयशा, आप मुझे बता सकती हैं, बाकियों को नहीं बता सकती, लिख कर। लेकिन आपको मिला है कि नहीं? हाँ, बाब इफ़ाल, अकरामा युक्रे मो, और इसका अमर है अक्रम। अच्छा, मजूल भी हो सकता है ना, अकरामा मजूल भी हो सकता है। औफू, बिल्कुल ऐसे है पहला लफ्ज़। ये कैसे पता चला? एक लफ्ज़ काफ़ी है हुसैन, ताकि बाकी लोगों को पहचानने का मौका मिले। औफू, ये है बाब इफ़ाल। ये कैसे पता चला आपको? क्या है? इसके ऊपर ज़बर है। अमर में ज़बर तो वैसे आता है, कहीं नहीं आता। सुलासी मुजरद में कहीं भी नहीं आता। ज़ेर आता है या पेश आता है, ऐसे है ना। इदरिब, और फिर उनसुर, उकरम, ज़बर नहीं आता। फिर अमर में बाब इफ़ाल के ज़बर आता है बस, और कहीं भी नहीं आता। इनमें भी नहीं आता। देखें, ये इजतनाबा, इसमें भी नहीं आता। एहमर्रा, इसमें भी नहीं आता। इन फतरा, इसमें भी नहीं आता। इस्तकबला, जो फेल अमर में ज़बर आता है वो सिर्फ बाब इफ़ाल का आता है फेल अमर में। अकरे मुँह, कल हमने यही बात पढ़ी थी ना, यही लफ्ज़ अकरे मुँह। यहाँ पर भी एक या है जो हज़फ हुई है, लेकिन फिर भी पता चल गया ना। बिल्कुल, वो तो होगा ना, वो आसान हो जाएगा। लेकिन बाप अगर याद नहीं भी ना, तो तब भी आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको इसी से समझ में आएगा। कबीर याद करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। मुझे असल में एक कुछ मैंने सर्फ सगीरें निकालनी हैं, कबीर और सर्फ सगीर भी स्टूडेंट्स लिखते रहते हैं। वहाँ शेख ज़ैद के उसमें मेरे ख्याल में मिलते हैं, वहाँ पर तमाम की सर्फ सगीर कबीर लोगों ने लिखी है, बच्चों ने सारी की। मैं आज भी पूछूंगा, कुछ तो मुझे मेरे अपने रूम में मिल गए। सर्फ सगीर भी कबीर भी सब की लिखी हुई है, माना तर्जमा सब लिखा हुआ है। हर साल अच्छे बच्चे होते हैं, लिखते रहते हैं। आपकी क्लास में भी पिछली दफ़ा कुछ लोग लिख रहे थे ना, तो मैंने कहा था कि मुझे भेज दें आप, तो शायद आप लोगों ने भेजे भी होंगे। तो जिसने भेजा होगा शायद उसको कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी मिले होंगे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ऐसा था ना। तो ये कुछ चीज़ें रह गई तो फिर आप उनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये है औफू। अच्छा, और भी है, और भी लफ्ज़ हैं। नहीं, ये नहीं है। नहीं, यजरिम की बात कर रही हैं? नहीं, ये नहीं। उज़कुरू, तो अभी तो हमने कहा कि उसके ऊपर ज़बर आएगा अमर में। अच्छा, एक तो ज़बर आएगा, दूसरी बात ये कि ऐन कलीमा में ना ज़ेर है, यहाँ पर नहीं आ रही। अकरिमू, इब्तगू नहीं था, ये तो मैंने खुद इसमें लिखा है, लेकिन है इफ्तियाल। ये अभी कहा था ना हमने, इफ्तियाल है। अमसकना, कैसे पता चला आपको? हाँ, अमसकना है, बिल्कुल आपने भी कहा है, माशाअल्लाह। क्या नाम क्या आपका? इकरा।
हाजरा और इकरा को पता चल गया अमसकना, अकरमना। जी हाजरा कैसे पता चला साहब को? अलिफ पर ज़बर है, ठीक है ना, अलिफ पर ज़बर है। और बाब सुलासी मुजर्रद के जो बाब हैं, माजी का किसी पर अलिफ पर ज़बर नहीं होती। अलिफ आता नहीं है सुलासी मुजर्रद में ना, दाराबा नासारा अलिफ नहीं आता ना किसी में। अगर इनके यहाँ अलिफ आता है तो इसके और चीज़ें भी हैं। अलिफ के साथ सीन आता है, अलिफ के साथ नून आता है, अलिफ के साथ ये फिर यहाँ पर कोई लफ्ज़ डबल होता है, तो अलिफ के बाद जो है ये फिर ते भी आता है। तो यहाँ पर इसी से अमसकना। अच्छा अमसकना जो लफ्ज़ है, कौन सा लफ्ज़ है ये? अमसकना। अमसका है ये, अकरामा। अमसका मुअन्नस है, अमसकत उस एक औरत ने पकड़ा, अमसकता उन दो ने पकड़ा, अमसकना उन सारी औरतों ने पकड़ा। तो यहाँ पर पकड़ने का माना है, यानी वो यहाँ शिकारी कुत्ते की बात हो रही है कि वो जिसको पकड़ लें। इकरा का मुझे लग रहा है इसलिए पता चल गया कि इकरा का सूरतुल माइदा का असाइनमेंट होगा और पहली आयतें इकरा की होंगी। ऐसे है कि नहीं? नहीं ऐसा असाइनमेंट दिया था ना आपको पिछली दफा इसी सूरत का, सूरतुल माइदा का नहीं दिया था? अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी सूरत बकरा थी। चलें सही, ठीक। ये आप ये माजी मुजारे पे गौर कर लें, सबके समझ में आ जाता है बगैर किसी इसी के। ये मसदर लिख लिया ना हमने, इनका माजी लिखे, मुजारे लिखे, थोड़ी देर बैठ जाएं, सब समझ में आ जाएगा। उसी पे गौर करें, इसी पर गौर करें तो आ जाएगा। मैं भी आपको बता दूंगा, मैं आपको फिर ये बता दूंगा। अभी ये मसदर का बता रहा हूँ ना, आपको फिर बता दूंगा। इन सब का माजी लिखें आप तो उसमें भी आ जाएगा। अच्छा एक तो ये हो गया कि अमसकना, अकरमना जमा मुअन्नस है और अलिफ पर ज़बर है। ये मुजारे नहीं हो सकता। क्यों मुजारे क्यों नहीं हो सकता? अलिफ तो आता है लेकिन मुजारे में ना, मिसाल के उसमें अदरिबो आखिर में पेश आता है, यहाँ पर कोई पेश है भी नहीं, आखिर में कोई वजह भी नहीं है उसके पेश के हटाने की भी। और माने में भी आपको वहाँ पता चल जाएगा, मुतकल्लिम वाला माना होता है, यहाँ पर वो भी नहीं होगा। अच्छा और भी है, और भी है। आमनु बिल्कुल है, आमनु क्या माना है इसका? तुम ईमान लाओ नहीं। अच्छा इसमें दोनों है, आमिनु जेर के माना है लाओ और जबर का माना है वो लोग जो ईमान लाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अकरमू, बिल्कुल है, अलिफ यही है। यहां पर एक हमजा भी है ना, ईमान वाला हमजा, मोमिन। मोमिन ये वाव के मीम के बाद हमजा होता है, वाव के ऊपर एक वो भी है, इसलिए ये मद हो गया। ये मद की वजह यही है, एक हमजा और भी है। मोमिन ये झटका जो दे रहे हैं ना हम, एक हमजा है। ईमान ये जो अलिफ है ना, अलिफ वो असल में हमजा है वो, तो वो बन गया अलिफ, तो मद इसलिए है। अकरामू, आमानू, तो अलिफ से ही पता चला हमें कि ये भी बाबी फ़ाल है। मद के अंदर एक अलिफ, मीम और नून, ये तीन लफ्ज़ हो गए। ईमान लाए। और भी है क्या बाब इफ़ाल का? और भी क्या है? कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक और भी है। अकला कहाँ है? नहीं वो तो अकला या कोलो होगा। देखिए वो तीन लफ्ज़ है ना, तो चार होने चाहिए थे। फिर अगर अलिफ को देख रही हैं तो एक और भी होना चाहिए। एक और भी है। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पर जो है ना अकला है, आकला नहीं। क्या? उज़कुरू, उज़ पेश है उसका, ये नहीं। तो हिल्लू, अहल्ला युहिल्लो, जी बिल्कुल ये भी है, ये फिल मुजारे है। युहिल्लो, युकरेमो, युकरेमू,
तुकरेमू, तुकरेमू, ये लाम के ऊपर शद है, तो ये शद का मतलब दो लफ्ज होते हैं, ये भी है। यानी ये देखिए, ये है अहल्ला, ये शद है ना, तो शद असल में है दो लफ्ज, अहल्ला ला, अहला ला असल में है यूं। हलाल है ना, हलाल, तो लाम डबल है ना उसमें, हलाल में, तो ये तशदीद है, शद है। तो एक लाम और है इसमें, अहल्ला, अहल्लू। अच्छा, अहल्ला इसका मुजारे है युहिल्लो, 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 अहल्ला, अहल्ला युहिल्लो, युहिल्लो। अच्छा, तो इसका मुखातब क्या होगा? तुहिल्लो, तुहिल्लो, और जमा होगा तुहिल्लू, और लाम लगाएंगे तो ला तुहिल्लू, तुम हलाल मत करो, हलाल उसको मत करो, जायज़ मत जानो उसको, ये भी है। पेश है ना शुरू में, और फिर ये मजहूल, पेश मजहूल में आता है ना फिल मुजारे के, लेकिन जब मजहूल में पेश आता है तो आखिर से पहले ज़बर आता है। पढ़ा नहीं आपने? यदरिबो का मजहूल क्या है? तो युदरबो है ना, तो रे पर ज़बर आया ना। यनसुरो का क्या है? तो युनसारो है, तो आखिर से पहले ज़बर आया ना। तो यहाँ पर शुरू में पेश आ जाए और आखिर से पहले ज़ेर आ जाए तो ये मुजारे में बाब इफ़ाल ही होता है। अकरामा युक्रे मो, देखें यह युक्रे मो, देखें ये ज़ेर है और ये है पेश। ये शुरू में पेश आ जाए और आखिर से पहले ज़ेर नहीं आती मजहूल में कहीं भी, तो ला तुकरेमू ला तुहिल्लू, तो ये यहाँ पर ऐसे है। कहाँ पर? मजहूल में ज़बर आएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मजहूल में ज़ेर नहीं आता। अगर आपको पेश से ये लगे ना कि ये मजहूल है तो आपको यूँ पहचान करनी होगी। हाँ, सेकंड लास्ट में जो है ज़ेर आएगा। हाँ, ये बाब इफ़ाल में ऐसे होता है, शुरू में पेश आता है, शुरू में पेश आता है, मुजारे के शुरू में पेश आता है और सेकंड लास्ट पर ज़ेर आता है। वरना हो सकता है आपको मिक्स हो जाए मजहूल से, लेकिन मजहूल से यूँ मिक्स होने से आप ख्याल रखेंगे। अच्छा, चले और मैं देखता हूँ, और बाब इफ़ाल हो गया जी, और है हाँ, उहिल्लत नहीं बताया। हाँ, उहिल, देखें यह है ना अहल्ला, और ये इसका मजहूल है उहिल्ला। अहल्ला मारूफ और इसका मजहूल ओहिल्ला, और ते मुअन्नस वाली है ओहिल्ला। यहाँ पर अगर आपको ये लगे कि ये सुलासी मुजर्रद है, तो सुलासी मुजर्रद में फिर शब्द जब आता है तो उसके अलावा फिर कितने बचते हैं? यानी टोटल 3 होते हैं ना, तो एक शद वाला लफ्ज़ उसमें डबल हो गए, तो हम शद को खोल देंगे तो टोटल मिला कर 3 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये लाम भी शद वाला और ये भी, तो मतलब इसमें बाब इफ़ाल के माजी में 4 होते हैं। अच्छा, उसके बाद बाब तफ़ाउल नहीं है, बाब इफ़ाल हो गया। इफ्तिआल भी हमने देख लिया। मुफ़अला, मुफ़अला, और इसका माजी है क़ाबला, युक़ाबिलु, क़ाबला, युक़ाबिलु। जी, अब ज़रा बताइए कि ये बाब मुफ़अला है? ते नहीं आएगी ना, शुरू में ते है, वो तो सही ना, वो शुरू में ते है, मीम इसमें फ़ाइल का है। ये जो मीम आ रहा है ना, ये आपको पता है सुलासी मज़ीद फ़ी के जितने भी बाब हैं ना, तो इसके जो इसमें फ़ाइल है ना,
اس کے شروع میں پیش آتا ہے، میم آتی ہے. اکرم یکرم اکرامن فہو مکرمن، باب تفعیل کا مصرفن، دیکھیں اس کا، اور مجہول مصرفن. افتعال کا ہے مجتنبن، اور اس کا ہے متقابلن، اور اس کا ہے مصرفن، اور اس کا ہے محمرن، اور اس کا ہے منفطرن، اور اس کا ہے مستقبلن. تو باب میم آتی ہے اس میں فاعل میں بھی اور مفعول میں بھی. تو یہ یہاں پر میم آئی ہے نا، یہ اس میں فاعل ہو سکتے ہیں یا مفعول ہو سکتے ہیں. جی اور کوئی ہے؟ نہیں ہے، باب افعال نہیں ہے، بالکل نہیں. چلے ٹھیک ہے، نہیں ہے نا. ہاں نہیں، یہ باب، یہ تفاعل لکھا نہیں ہے. تفاعل، تفاعل بھی تو آپ نے یاد نہیں کیا تھا، کیا ہوگا نا. تفاعل کیا ہے نا، یہ ہے تفاعل. تفاعل لکھا نہیں ہے ہم نے یہاں. یہ ہے تفاعل. تقابلا، تقابلا یتقابل، تعاونوا، تعاونوا، یہ فعل امر ہے. یہ تعاونوا، تم تعاون کرو، ٹھیک ہے. یہ فعل امر ہے. فعل امر میں اصل میں کیا تھا؟ یتعاونوا، یہ ہے نا، یہ ہے مضارع. ولا تعاونوا، یہ ہے امر. نہیں، یہ نہیں ہے. تعاونوا، تعاون، تقابل، دیکھیں تعاون، تقابل، تقابلا، تعاونا. یہ تے آتی ہے شروع میں، شروع میں تے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی الف بھی آتا ہے. تقابلا یتقابل، الف بھی آتا ہے بعد میں. ہاں ہاں جی. تعاون، ولا تعاونوا، تعاونوا بالاثم، ولا تعاونوا، تعاونوا تم تعاون کرو. ولا تعاونوا، اصل میں تتعاونوا ہے. یہ ڈبل تے ہو گئی نا، تو اس میں حذف ہو گئی. ولا تتعاونوا، تتقابلوا. یہ سورۃ المائدہ کی پہلی آیتیں ہیں. سورۃ المائدہ کی شروع کی آیتیں ہیں یہ ساری. اچھا، اب ایک بات اور کہ یہ والا باب کہاں ہے؟ یہ ہاں، اس کی علامت یہ ہے کہ سین آئے گا پھر تے آئے گا. ماضی میں الف بھی ہے لیکن سین آئے گا اور تے آئے گا. ہر جگہ پر سین آئے گا اور پھر تے آئے گی. استفعال، جی. استنصارا، یعنی فے کلمہ اس کے بعد آئے. قاف سین ہے. یہ شروع میں الف آتا ہے ماضی میں، اور پھر مضارع میں الف نہیں آتا. سین اور تے ہمیشہ رہتے ہیں ہر جگہ، سین اور تے. تو یہ تستقسموا مضارع ہے. اچھا، یہ باب، یہ مقلبین جو ہے نا، یہ مقلبین ہے. یہ باب تفعیل کا اس میں فاعل ہے. مصرفن، مصرفن، مصرفون اور مصرفین، یہ جمع مذکر سالم ہے. مصرفن، مقلبن، ٹھیک ہے. مقلبن، یہ باب تفعیل کا کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل کا کیسے پتہ چلا؟ میم سے، اور میم کے بعد شد آ گئی تو شد باب تفعیل میں آتی ہے ہمیشہ. شد آئی گا، شد تفعیل میں ہوتی ہے. اچھا، ثلاثی مجرد کی بات کریں تو یہ اکلا کیا ہوگا؟ نہیں، اکلا کے بعد کیا ہوگا مضارع؟ یاکلو، تو ینصرو، نصارا ینصرو.
अकाला याकुलु, वला ताकुलु, हमें यूं भी पता, वला ताकुलु अमवालकुम, तो इसका मुजारे जो है ना ये है बाब नसरा यनसुरु। अकाला माजी है और मुजारे है याकुलु यनसुरु। नसरा यनसुरु। अच्छा ज़क्कैतुम जो है ना ये भी बाब तफ़ील है। हाँ अभी यानी थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी हो जाता है ना। आप बिल्कुल खामोश खामोश बैठी हैं। अच्छा ज़क्कैतुम जो है ना सर्रफ्तुम की तरह है, ये भी बाब तफ़ील है। तशदीद है ना इसके अंदर दूसरे लफ्ज़ पर, तो ये भी तफ़ील है, तशदीद है, तो ये भी वही है। सर्रफ्तुम ज़क्कैतुम। ज़ुबिहा ये क्या होगा? ज़बा हुआ। हाँ ज़ुबिहा सुलासी मुजर्रद का है, मजहूल है ये। ज़ुबिहा ज़ाबहा यज़बाहु, ज़ाबहा यज़बाहु फ़तहा यफ़्ताहु, या दोरिबा की तरह, मतलब यह है सुलासी मुजर्रद है, मजहूल सुलासी मुजर्रद का। अभी यह है कि उसका मुजारे मालूम हो जाए तो फिर आपको बाब भी पता चल जाएगा। यहकुमु कौन सा है, किसका मुजारे है? बाब नहीं, वो पेश आता है शुरू में, ये ज़बर है। यनसुरु, यहकुमु नसरा यनसुरु यहकुमु। हकामा। अच्छा युरीद क्या लफ्ज़ है? युरीदो, युक्रिमु, बिल्कुल। अभी बताया था ना कि फ़ेल के शुरू में पेश आ जाए और आखिर से पहले ज़ेर आ जाए। यहाँ पर ज़ेर नहीं थी, ये है ना, ज़ेर आ नहीं सकती। युक्रिमु ये बाबी फ़ाल है। युरीदो युक्रिमु पेश आए ना शुरू में। युक्रे, हाँ चार तो एक ये, तो ठीक है। आखिरी रमशा लीजिएगा।